آج کے اس درس میں نماز کے حوالے سے چند ایک مسائل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ امید کرتا ہوں کہ جو بھی مستورات یہاں پہ آئی ہوئی ہیں اور جو بھی ہمارے بھائی حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ آج کے اس درس کو غور سے سنیں، کیونکہ جو درس ہے یہ علمی ہے، عملی درس ہے اور یہ ہماری زندگی کے اندر کام آنے والی چیز ہے۔ جب تک ہم شریعت کی باریکیاں نہیں جانیں گے، شریعت کے مسائل نہیں جانیں گے، شرعی احکام نہیں جانیں گے، جب تک ہم اللہ رب العالمین کی عبادت جس طرح سے کرنی چاہیے ہم نہیں کر پائیں گے۔ اور اگر اللہ نے عبادت کی توفیق دے بھی دی تو اس عبادت پہ ہمیں اس وقت تک ثواب نہیں ملے گا جب تک ہم اپنی نماز کو اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق نہ کر لیں۔ پیارے رسول نے کہا تھا، چند صحابہ کرام آئے تھے اللہ کے رسول سے سیکھنے کے لیے، جیسے آپ لوگ یہاں پہ آئے ہیں کچھ جاننے کے لیے، کچھ سیکھنے کے لیے، ایسے اللہ کے رسول کے پاس چند صحابہ آئے اور نبی کے گھر میں 20 دن تک رہ گئے دین سیکھنے کے لیے، نبی کی سنت جاننے کے لیے۔ جب وہ گھر سے سیکھ کر کے جانے لگے، اللہ کے رسول سے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم بچوں کو گھر پہ چھوڑ کر کے آئے ہیں، ہمیں بچوں کی یاد آتی ہے، ہم بیویاں چھوڑ کر کے آئے ہیں، بیویوں کو ہماری ضرورت ہوگی، ہمارے ماں باپ بھی گھر پہ ہیں، ماں باپ کو چھوڑ کر کے آئے ہیں، ماں باپ کی یاد آتی ہے، اے اللہ کے رسول جانے کی اجازت دے دیجئے۔ اللہ کے رسول نے کہا، ٹھیک ہے تم اپنے گھر جا سکتے ہو، لیکن جب اپنے گھر جانا اقیم الصلاۃ تو خود نماز پڑھنا، وعلموہم اور ساتھ ہی ساتھ نماز کی تعلیم اپنے بچوں کو دینا۔ جب جانے لگے اللہ کے رسول نے بہت ساری نصیحتیں کی اور کہا، صلو کما رأیتمونی اصلی، اے میرے پیارو تم نماز ایسے ہی پڑھنا جیسے نماز پڑھتے ہوئے تم لوگوں نے مجھے ان 10-15 دنوں کے اندر دیکھا ہے، ایسی نماز نہیں پڑھنا جیسے میں نے نماز نہیں پڑھی ہے، جس طریقے پہ میں نے نماز ادا کی ہے اے میرے پیارو اسی طریقے پہ نماز پڑھنا۔ نبی کے قول میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ رب وہی نماز قبول کرتا ہے جو اس کے محبوب جناب محمد رسول اللہ کی سنت پر اور اس کے طریقے پر ادا کیا گیا ہوگا، وہی نماز ہے۔ نمازیں آپ کو بہت ملیں گی، اپنے طرف سے لوگوں نے نمازوں کو گڑھ لیا ہے، نمازوں کو بنا لیا ہے، الگ الگ نام رکھ کے جو ہے نمازیں پڑھی جاتی ہیں، جہاں نہیں پڑھنا ہے وہاں پڑھتے ہیں، جہاں پڑھنی ہے نماز وہاں نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتلانا چاہوں گا، اللہ وہی نماز قبول کرتا ہے جو نماز اس کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کی گئی ہوگی۔ کوئی بھی عمل ہم کرتے ہیں تو اس کے قبول ہونے کے لیے 3 چیزیں مسٹ ہے، 3 چیزیں ضروری ہیں۔ پہلی چیز ایمان ہے، ایمان لانے کے بعد آدمی وہ نیک کام کیا ہو، وہ اچھا کام کیا ہو۔ اگر کوئی کافر آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کو اس کی نماز کا ثواب نہیں ملے گا۔ اگر کوئی کافر وضو کرتا ہے تو وضو پر ثواب نہیں ملے گا۔ اگر کوئی کافر زکوٰۃ دیتا ہے زکوٰۃ کا ثواب اسے نہیں ملے گا۔ حج کرتا ہے حج کا ثواب نہیں ملے گا، اور دیگر وہ نیکیاں کرتا ہے اسے ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب اگر اس کو پانا ہے، اللہ کے یہاں محبوب اسے بننا ہے، تو وہ ایمان کو اپنے گلے سے لگانا ہوگا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا ترانہ گنگنانا ہوگا۔ جب یہ ترانہ اپنے زبان سے ادا کرے گا، یہ کلمات اپنے زبان سے ادا کرے گا، تو اسلام کے سرکل میں داخل ہو جائے گا، اور اسلام کے سرکل اور دائرے میں آنے کے بعد وہ چاہے چھوٹا کام کرے یا بڑا کام کرے، یہاں تک کہ اگر کوئی اپنے بچوں کو ثواب کی نیت سے نوالا بھی ڈالتا ہے، دودھ کی بوتل بھی پلاتا ہے، یا اپنے بچے اور بچیوں کی دیکھ ریکھ کرتا ہے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، وہ خدمت خلق کرتا ہے، والدین کی خدمت کرتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، بہن بھائی کی خدمت کرتا ہے، بچوں کو دودھ پلا دیتا ہے، بچوں کو کھانا کھلا دیتا ہے، یہاں تک کہ گندگی اگر وہ بچوں کو صاف کرتا ہے اگر اچھی نیت سے، تو اس نیت پر اسے ثواب ملے گا۔ یہی اسلام کا ایک فائدہ ہے کہ اسلام میں آنے کے بعد کوئی چھوٹا کام کرے یا بڑا کام کرے اللہ اسے ثواب دیتا ہے، لیکن ایمان نہ اگر آدمی لائے، دنیا بھر کی وہ نیکیاں کرے، ایسی نیکیوں کو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین آوارہ ہواؤں کے حوالے کر دے گا۔ رب کا فرمان ہے، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ قیامت کے دن کچھ لوگوں کی نیکیاں
पहाड़ की शक्ल में होंगी। ये नमाज का पहाड़ है, ये ज़कात का पहाड़ है, ये दीगर नेकियों का पहाड़ है, लेकिन उसने वो अमाल इस हालत में किए होंगे कि उसका दिल ईमान से खाली होगा, या अमाल तो किया होगा लेकिन दिखाने के लिए किया होगा कि फला चौधरी साहब है, वो मुझे बड़ा अच्छा कहेंगे तो मैं अच्छा बन करके रहूं, मैं नमाज पढ़ूं, और कोई आ जाए तो नमाज लंबी लंबे सजदे, लंबे लंबे रुकू और लंबी लंबी किरातें करनी शुरू कर दूं। इस दिखावे पर जो नमाज पढ़ी गई होगी वो नमाज भी अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस नमाज को हवाओं के हवाले, रेत का जर्रा बना करके हवाओं के हवाले कर देगा, उसके आमाल उसे कयामत के दिन फायदा नहीं पहुंचा पाएंगे। तो अमाल के कबूल होने के लिए पहली चीज क्या है? ईमान है। ईमान की हालत में हम वो काम अंजाम दिए। दूसरी चीज इखलास है। जो काम हम कर रहे हैं वो इखलास के लिए कर रहे हैं, इखलास के लिए, अल्लाह के लिए करे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, दरसो दुरूस दिया जा रहा है, यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। अगर नीयत अच्छी होगी कि दीन की तबलीग हो, लोगों तक हक बात पहुंचे, तो ये आपके लिए सदक़े जारिया है, और इस इखलास पे अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें सवाब देगा और तुम्हारी दीगर परेशानियों और मुसीबतों को अल्लाह रब्बुल आलमीन सर से टाल देगा। तीसरी चीज जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है। नबी ने जो काम किया है उसी तरीके पर वो काम किया जाए। नबी ने नमाज जैसे पढ़ी है वैसे नमाज पढ़े, वैसे ज़कात दे, वैसे हज करे, वैसे रोजा रखे, वैसे दीगर इबादत करे। बारिश की नमाज जैसे अल्लाह के रसूल ने पढ़ी वैसी पढ़ी जाए, इस्तिखारे की नमाज वैसी पढ़ी जाए जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ के बताया है। चांद में अगर ग्रहण लग जाए, सूरज में ग्रहण लग जाए, उस पर अल्लाह के रसूल ने नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है। वो नमाज अगर उसी तरीके पर अदा की गई जैसे प्यारे रसूल ने अदा किया था तो वो नमाज अल्लाह कबूल करेगा। अगर उस नमाज से हट करके कोई सलाते हजारी के नाम से अगर नमाज पढ़ी गई जिसके अंदर अलग अलग तरीके से इतने बार कुल हु अल्लाह, इतने बार सूरह फातिहा, इतने रुकू, इतने सुजूद, जिसकी ना कुरान के अंदर दलील, ना हदीस के अंदर दलील, ना सहाबा की जिंदगी में उसकी दलील है, ऐसे अमाल अगर इंसान करता है तो उसके अमाल को अल्लाह उसके मुंह पे मार देगा। कल कयामत के दिन उसके अमाल उसको फायदा नहीं देंगे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ना किए गए होंगे। और जो अल्लाह के रसूल की सुन्नत को तर्क करता, छोड़ता है, अल्लाह फरमाता है फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफून अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। जो अल्लाह के रसूल की मुखालिफत करते हैं, चाहे वो मुखालिफत कोई मर्द करे या कोई औरत करे, कोई जवान लड़का करे या जवान लड़की करे, जो भी अल्लाह के रसूल के अम्र की मुखालिफत करेगा उसे अल्लाह दो अजाब से दो चार करेगा। पहला अजाब ये है, या तो अल्लाह उसे दुनिया के अंदर फितने में मुब्तला करेगा, माल का फितना, औलाद का फितना और इसी तरह से और दीगर चीजों का फितना, रब उसे फितनों के अंदर मुब्तला करेगा। अगर वो दुनियावी फितने से बच गया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे कल कयामत के दिन अजीब बहुत बड़े अजाब से दो चार करेगा, जो जानबूझ करके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की मुखालिफत करेंगे। मुझे एक रिवायत मुस्लिम शरीफ की याद आती है। हजरत सलमा इब्ने अक्वा बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खा रहे थे, इतने में एक आराबी देहाती आ गया। अल्लाह के रसूल ने कहा आओ तुम भी बैठ जाओ। अल्लाह के रसूल के साथ वो खाने लगा। अल्लाह के रसूल ने कहा कुल बियमीनिक, आए हुए शख्स दाहिने हाथ से खा। उसने गुरूर घमंड के अंदर एटीट्यूड में आकर के कहा मलस्ततातु, मैं नहीं खाऊंगा दाहिने हाथ से। अल्लाह के रसूल के सामने गुरूर किया, घमंड किया और एराजाना शक्ल के अंदर कहा मैं नहीं दाहिने हाथ से खाता, मैं जिस हाथ से खा रहा हूं उसी से मैं खाऊंगा, मेरी मर्जी है, जिस्म मेरा है, हाथ मेरा है, मैं जिस हाथ से चाहूं खाऊं। उसने नबी के सामने नबी की बात को नकार दिया, इग्नोर कर दिया। अल्लाह के रसूल के जुबान मुबारक से ये कलिमा निकला अल्लाह करे तू ना खाए, सलमा ना खा पाए। सलमा इब्ने अक्वा का बयान है कि जैसे ही अल्लाह के रसूल ने बद्दुआ दिया
वैसे ही उसका दाहिना हाथ शल हो गया। रावी का बयान है, कयामत तक वो रावी का बयान है कि जब तक वो शख्स जिंदा रहा उसका दाहिना हाथ उठ करके उसके मुंह तक नहीं गया। लोग जब उसको देखते तो कहते ये वही शख्स है जिसने अल्लाह के रसूल की मुखालिफत की है, नबी के सामने गुरूर का इजहार किया था और नबी ने उसको बद्दुआ दिया और नबी के बद्दुआ का असर ये हुआ कि उस आदमी का हाथ छल हो गया। अगर आज भी हम नबी की सुन्नत को के सामने गुरूर और घमंड पेश करते हैं और कोई कहता है कि ये काम करो, आदमी जो है कॉलर ऐड करके दूसरी तरफ भाग करके जाता है, तो ये नबी के सुन्नत से एराज है और उसे डरना चाहिए, मुतनब्बे रहना चाहिए कि कहीं रब का अजाब ना उसे आकर के पकड़ ले, कहीं मेरा रब उसे फितने के अंदर ना मुब्तला कर दे, कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पे पत्थरों की बारिश ना कर दे। इब्ने अब्बास का बयान है, यूशिकु अन तंजिल अलैकुम हिजारतम मिनस समाई अन अक़ूलु क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतुम तक़ूलून क़ाला अबू बकर व उमर। करीब है कि रब अजाब के तौर पे आसमान से पत्थरों की बारिश कर दे। मैं कहता हूं ये रसूल की सुन्नत है, तुम कहते हो ये फला इमाम की सुन्नत है, ये फला इमाम का तरीका है। हम अपने इमाम के तरीके पे चलेंगे, दूसरे के तरीके पे नहीं चलेंगे। कहां, क्या अल्लाह के रसूल इमाम नहीं है? क्या सबसे बड़े नबी से बड़ा भी कोई इमाम है? जिस नबी के सर पे नबूवत और रिसालत का ताज रखा गया, उसकी सुन्नत को छोड़ करके हम ऐरा गैरा नत्थु खैरा के सुन्नत पर अमल करें, ये कौन सी अकलमंदी की दलील है? इसी वजह से अल्लाह कौम को जलील और रुस्वा करता है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को तर्क करते हैं, छोड़ देते हैं। ये तीन चीजें अमल के कबूल होने के लिए जरूरी है। पहली चीज ईमान है, दूसरी चीज इखलास है, खालिस दिल से हम सच्ची नीयत के साथ अल्लाह की इबादत करें, और तीसरी चीज जो इबादत हम कर रहे हैं वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो। अब आइए नमाज के मसाइल, ये बुनियादी बातें थी जो कायदे की हैसियत रखती हैं। नमाज के लिए सबसे पहले क्या चीज जरूरी है? पाकी के ऊपर मैं 1 घंटे के ऊपर बयान पिछले दर्स में मैंने दिया, पाकी कैसे हासिल किया जाए, और ये पाकी नमाज के लिए जरूरी है। जब आदमी पाक हो जाए तो उसके बाद नमाज के लिए वजू की जरूरत पड़ती है। जब तक आपका वजू दुरुस्त नहीं होगा, जब तक आपकी नमाज नहीं सही होगी, जब तक आपका वजू दुरुस्त नहीं होगा, जब तक आपकी नमाज दुरुस्त नहीं होगी, यानी वजू जो है ये नमाज के लिए शर्त है। अगर ये शर्त खत्म हो गया तो जिस चीज के लिए शर्त लगाई गई है वो चीज भी अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल नहीं फरमाएगा। कहा जाता इदा फात शर्तु फातल मशरूत, जब शर्त ही खत्म हो जाए तो जिस चीज के लिए शर्त लगाई गई है वो चीज भी बातिल हो जाती है। मिसाल के तौर पे आपने वजू तो किया लेकिन सुन्नत के मुताबिक वजू नहीं किया, जा करके आपने जोहर की नमाज अदा कर ली, आपकी नमाज नहीं कबूल करेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन। आपने वजू तो किया लेकिन आपके हाथ का कुछ हिस्सा नहीं भीगा, नाखून के नीचे पानी नहीं पहुंचा। ये हमारी माएं और बहनें नाखून पॉलिश लगाए रहती हैं और नाखून पॉलिश लगाने के बाद ऊपर से वजू करके नमाज पढ़ लेती हैं, उनका भी वजू मुकम्मल नहीं होगा। नाखून पॉलिश अगर नाखून पे है और वजू का पानी जाहिर सी बात है पॉलिश के ऊपर नीचे नहीं पहुंच पाता है, तो अगर औरतें नाखून पॉलिश लगा करके वजू करती हैं तो उनका वजू मुकम्मल नहीं होता है, उनका वजू सही नहीं होता है, और जिसका वजू नहीं सही होता है उसकी नमाज भी अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल नहीं फरमाता है। बहुत सारे लोग जल्दबाजी में वजू करते हैं, एड़ियां नहीं भीगती है। अल्लाह के रसूल ने कहा बर्बादी हो एड़ियों वाले के लिए। कहा कौन एड़ी? कहा वो लोग जो वजू के अंदर अपनी एड़ियों को नहीं भिगाते हैं या वजू करने के बाद उनकी एड़ियां खुश्क रहती है, ऐसे लोगों के लिए जहन्नम की धमकी दी गई है। तो कहने का मकसद यह है कि वजू अगर आपका सही होगा तो आपकी नमाज सही होगी, और अगर आपका वजू दुरुस्त नहीं होगा तो याद रखें अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी नमाज को कबूल नहीं करेगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फगसिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफिक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन, कि ऐ मोमिनो जब तुम नमाज के लिए खड़े होने का इरादा करो, फगसिलू वुजूहकुम, तो पहला काम क्या करना है? अपने चेहरे को अच्छे तरह से धुल लो, फेस वॉश अच्छे तरीके से चेहरे को धुल लो।
उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है अपने हाथ को कहां तक धुल लो, मिरफक तक, कोहनी समेत धुलो। बहुत सारे लोग होते हैं, आपने देखा होगा कि वो बहुत सारे लोग वजू करते तो ये जो हड्डी है ये, इसको मिरफक कहा जाता है। इस हड्डी को धोना है। अगर यहां तक आप धुलते हैं तो आपका वजू मुकम्मल नहीं होगा। ये पूरा जो ये कोर हड्डी है ना, ये पूरी हड्डी भीगनी चाहिए वजू के अंदर। बहुत सारे लोगों की आस्तीनें जो होती हैं वो बहुत तंग होती है, यहां तक आस्तीन नहीं पहुंचती है, जिसकी वजह से वो सोचते हैं इतना हम अगर धुल लेंगे तो हमारा वजू हो जाएगा। याद रखें, अगर आपका ये टखना जो ये आपकी जो कोहनी है, कोहनी समेत अगर आपने हाथ को नहीं धुला तो आपका वजू मुकम्मल नहीं होगा। और आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है हाथ धुलने के बाद वमसहू बिरुऊसिकुम, अपने सर का क्या कर लो, मसह कर लो। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा मसा कैसे करते, बाल वाल कटा के आए रहते नाई के यहाँ से, उसने बाल सेट किया होता है। आजकल माशाल्लाह आपने लोगों को देखा होगा बाल भी अजीबो गरीब कट की। पुराने जमाने की अगर आप तारीख पढ़ें या पुराने जमाने में देखें तो जाना हो, कहीं घोड़ा गधा देखे तो वो डिजाइन के लिए कभी इधर काट देते कभी इधर काट देते। आज तो चांद तारे जो है, अब रमजान में चांद देखने की जरूरत नहीं है, लोग चांद बनवा लेते सरों पे, तारे बनवा लेते हैं। और उसके बाद जो है तरह तरह की हरकतें होती आपने देखा होगा। और मसा जब करेंगे, नमाज के लिए आएंगे, क्या करेंगे, इधर से एक हाथ इधर से लगा लिए, एक हाथ इधर से लगा लिए, ऊपर से कर लिए और ये सोच लिए कि हमारा मसा मुकम्मल हो गया। याद रखें, इस तरह से अगर आपने सर का मसा किया है ना तो आपका मसा वो कबूल नहीं होगा, आपका वजू मुकम्मल नहीं होगा। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल के बारे में आता है कि पूरे सर का मसा करते थे। कहते बदअ बिमुक़द्दम रासिही हत्ता ज़हबा बिहिमा इला क़फ़ा सुम्मा रद्दहुमा इलल मकानि लज़ी बदअ मिनहु। अल्लाह के रसूल अपने अगले हिस्से से, यानी जहां से बाल उगता है वहां से इस तरह शुरू करते थे, दोनों हाथों को मिलाकर, और उसके बाद पीछे जहां बाल खत्म होता है वहां तक ले जाते थे, फिर वापस दोनों हाथ को लेकर के अल्लाह के रसूल माथे तक आते थे। इस तरह करने से आदमी के सर का मसा मुकम्मल होता है और यही जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रही। फिर उसके बाद अपने पांव को धुलना है। पांव को कहां तक धुलना है, टखने समेत धुलना। ये जो हड्डी है, ये टखना है, इसके ऊपर तक आपको पांव क्या है, नमाज के अंदर वजू के अंदर आपको धुलना। इस तरह अगर आप करते हैं तो आपका वजू मुकम्मल हो जाएगा। और जब तक ये वजू आपका सही नहीं होगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला यक़बलुल्लाहु सलाता अहदिकुम इज़ा अहदस हत्ता यतवद्दा, कि तुम में से किसी की नमाज को अल्लाह उस वक्त तक कबूल नहीं फरमाता है जब वो मुहदिस हो जाए, उसका वजू टूट जाए, यहां तक कि वो क्या कर ले, वजू कर ले। तो आपको मालूम होगा वजू बहुत सारी चीजों से टूट जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे आदमी इस्तिंजा किया, उसका वजू टूट जाता, पाखाना किया, उसका वजू टूट जाता, हवा खारिज हुई, उससे उसका वजू टूट जाता। और बहुत सारी चीजें जो है मुआशरे के अंदर जो है फर्जी चीजें फैली हुई हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने तेज से हंस दिया तो लोग कहते हैं वजू टूट गया, जबकि हंसने का वजू से कोई कनेक्शन ही नहीं, ताल्लुक ही नहीं है। इसी तरह से कुछ लोगों के ज़हनो दिमाग में ये भी बात है कि अगर आपने गाली दे दिया तो आपका वजू टूट गया, जबकि ये भी शरीयत में अपने तरफ से लोग ऐड कर देते हैं। अगर कोई चीज है वजू टूटती है अगर उससे, तो दलील लेकर के आप आए। क्या किसी सहाबी से उसकी दलील है? क्या हदीस के अंदर उसकी दलील है? क्या किसी सहाबी ने यह फतवा दिया कि अगर कोई आदमी गाली जुबान से निकाल दे तो वजू टूट जाए? तो गाली अगर कोई आदमी दे देता या जुबान से निकाल देता, गाली का गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है गाली का। क्योंकि गाली के जो गाली ये मुताद्दी होती है, आप उसको तकलीफ देते हैं, गाली से उसको तकलीफ होती है, उस तकलीफ के उसमें जो आदमी दुश्मनी और पता नहीं क्या क्या आगे कर बैठता है। तो गाली देने से भी वजू नहीं टूट जाता, लेकिन गाली देना बहुत बड़ा गुनाह। गाली देने का गुनाह अलग है, वजू का हुक्म अलग है। ना गाली देने से वजू टूटेगा या इसी तरह से जो है ना गाली देने से वजू मुकम्मल होगा। यानी वजू और गाली का कोई ताल्लुक नहीं है। गाली देने से वजू नहीं टूटता, लेकिन याद रखें गाली देना बहुत बड़ा जुर्म और बहुत बड़ा गुनाह है। इसी तरह से औरतों के यहाँ है,
हैज का खून आ जाए, निफास का खून आ जाए, उससे क्या है वजू टूट जाता है। और ये सारी चीजें हैं जिससे वजू टूट जाता है। अब कुछ चीज के अंदर नहाना वाजिब है, कुछ चीज के अंदर वजू, इस्तिंजा करके आए आप, पाक साफ है, आप वजू कर लें, हवा खारिज हुई, आपने वजू किया, नमाज पढ़ सकते। लेकिन अगर हैज और निफास का है तो ऐसी सूरत में नहाना जरूरी है। नहाने के बाद जो है फिर से वो वजू करेंगे, वजू करके क्या करेंगे, वो नमाज पढ़ेंगे। तो पता क्या चला कि नमाज के लिए वजू जरूरी है, और वजू के लिए क्या जरूरी है, नियत का होना जरूरी है। अगर आप मस्जिद के अंदर गए, देखा लोग वजू कर रहे हैं, आप भी वजू में शामिल हो गए, आपने नियत नहीं किया, आपका वजू मुकम्मल नहीं होगा। आप आदतन कोई काम करने गए या वजू करने के लिए गए, लेकिन नियत नहीं की आपने नमाज की, तो याद रखें वो आपका वजू मुकम्मल नहीं होगा। वह जिस तरह नमाज के लिए वजू जरूरी है, ऐसे ही वजू के लिए नियत का होना जरूरी है। और नियत का असर अमाल पे बहुत पड़ता है। जितनी मजबूत आपकी नियत होगी उसी हिसाब से अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको सवाब देगा, और इसी मन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन कयामत के दिन तुम्हारे अमाल का फैसला करेगा। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, बुखारी की पहली रिवायत है कि अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही व मन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा औ इला इमरातिन यनकिहुहा फहिजरतुहु इला मा हाजर इलैहि अखरजहु बुखारी व मुस्लिम। बुखारी मुस्लिम की रिवायत है। रिवायत करने वाले हजरत उमर इब्न खत्ताब हैं। फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अमलों का दारो मदार नियत पे है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो बंदा जैसी नियत करेगा अल्लाह रब्बुल आमीन उसको वैसे ही अजर देगा। जिसने हिजरत इस नियत से की कि मैं वहां जाकर के दुनिया कमाऊंगा या वहां जाकर के किसी से शादी कर लूंगा, तो जिस नियत से वो गया है उसकी के नियत के हिसाब से अल्लाह रब्बुल आमीन उसको सवाब देगा। अगर कोई हज के लिए जा रहा है ये सोच करके कि वहां जाके मैं कारोबार करूंगा, तो कारोबार का तो उसे मिल जाएगा बेनिफिट और फायदा, लेकिन अगर वो उसी में जाके हज भी कर लेता है लेकिन नियत उसकी नहीं रहती है तो उसको हज का सवाब नहीं मिलेगा। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार किस पर है, नियतों पर है। इसी तरह से एक और रिवायत है कि किस तरह से अल्लाह कयामत के दिन नियतों के हिसाब से फैसला करेगा। फरमाते हैं कि यग़ज़ु जैशुनिल काबा, हजरत आयशा की रिवायत है, कहती हैं यग़ज़ु जैशुनिल काबा फ़इज़ा कानू बिबैदा मिनल अर्द युक़सफ़ु बिअव्वलिहिम व आखिरिहिम क़ालत क़ुल्तु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफ़ युक़सफ़ु बिअव्वलिहिम व आखिरिहिम व फ़ीहिम अस्वाक़ुहुम व मन लैसा मिनहुम फ़क़ाल युक़सफ़ु बिअव्वलिहिम व आखिरिहिम सुम्मा युबअसून यौमल क़ियामति अला निय्यातिहिम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत आयशा बयान फरमाती हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि एक लश्कर जो है ये काबा को गिराने के लिए बढ़ेगा आगे। फ़इज़ा कानू बिबैदा मिनल अर्द, जब वो सरजमीने बैदा के अंदर पहुंचेगा, एक चटियल मैदान के अंदर पहुंचेगा। बाज लोगों ने कहा कि उससे मुराद अरफा का जो मैदान है, कहा कि जब वो एक चटियल मैदान पे या इसी तरह से सरजमीने बैदा के अंदर पहुंचेगा, युक़सफ़ु बिअव्वलिहिम व आखिरिहिम, उनके तमाम लोगों को अव्वल और आखिर सबको जमीन के अंदर धंसा दिया जाएगा। हजरत आयशा पूछ पड़ती हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, सबकी क्या गलती है, सबको क्यों धंसा दिया जाएगा? उसमें कुछ बाजार करने के लिए आए होंगे, कुछ और काम के लिए आए होंगे, कुछ तमाशाई भी होंगे, जो अल्लाह के फरमा बरदार बंदे भी उसके अंदर होंगे, सबकी क्या गलती है, सबको क्यों धंसा दिया जाएगा? अल्लाह के रसूल ने कहा, ऐ आयशा, सबको धंसा दिया जाएगा। कल कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको उनके नियत के हिसाब से उठाएगा। अगर नियत में अच्छाई होगी तो रब उन्हें सवाब देगा, नियत के अंदर फुतूर और कमी वाक़ई होगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी कमी के हिसाब से उन्हें अजर देगा। काबा के ढाने की गरज से आए होंगे, अल्लाह उनको जहन्नम के अंदर डालेगा। अगर उनकी मदद की नियत से आए होंगे तो उसी हिसाब से अल्लाह उन्हें उठाएगा। युबअसून यौमल क़ियामति अला निय्यातिहिम, नियतों के हिसाब से मेरा रब कल कयामत के दिन फैसला करेगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इदल तकल मुस्लिमान बिसैफिहिमा फलकातिल व मक़तूल किलाहुमा फिन्नार। अल्लाह के रसूल ने कहा, जब दो मुसलमान भिड़ जाते हैं, दो मुसलमान लड़ जाएं, तो मारने वाला और जिसको मारा गया है, कत्ल करने वाला और जिसका कत्ल किया गया है,
किलाहुमा फिन्नार, दोनों जहन्नम के अंदर जाएंगे। साइल पूछ पड़ता है, ऐ अल्लाह के रसूल, हादल कातिलु फमा बालुल मक्तूल, ये तो कातिल है, इसने मर्डर किया है, इसने मारा है, इसका तो मामला समझ में आता है। फमा बालुल मक्तूल, ऐ अल्लाह के रसूल, जो कत्ल हो गया है, जिसकी गर्दन पे तलवार चल चुकी है, उसका सर धड़ से अलग हो गया है, उस मजलूम बेचारे की क्या गलती है? ये इसकी गलती समझ में आ रही है, क्योंकि ये मारने वाला है, ये जालिम है, मजलूम की क्या गलती है? उसको अल्लाह की जहन्नम के अंदर डाल देगा। प्यारे रसूल ने क्या कहा? इन्नहु काना हरीसन अला कत्ल साहिबी, इसकी दिल की ये तमन्ना थी कि मैं अपने मद्दे मुकाबिल को कत्ल कर दूं, ये चाहता था उसको कत्ल कर दूं, वो चाहता था उसको मार दूं, दोनों भिड़ गए, लेकिन वारिस खता, यानी जिसको लगना था नहीं लगा, लेकिन नीयत दोनों की एक थी। ये उसको मारना चाहता था, ये उसको मारना चाहता था, और कल कयामत के दिन इसी नीयत की बुनियाद पे अल्लाह रब्बुल आलमीन उन दोनों को क्या देगा? सजा देगा। इस वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अल कातिल वल मक्तूल किलाहुमा फिन्नार, मारने वाला जिसको मारा गया है, दोनों कहां पे जाएंगे? जहन्नम के अंदर जाएंगे, क्योंकि उसके दिल के अंदर यह नियत थी कि वो अपने भाई को कत्ल कर दे, लेकिन गलती से इसको तलवार लगी, गलती से इसको लाठी डंडा लग गया, इस वजह से जो है इसका क्या हो गया? खात्मा हो गया। तो बयान करने का यह मकसद है कि इसी नीयत की बुनियाद पे अल्लाह रब्बुल आलमीन कल कयामत के दिन फैसला करेगा। इस वजह से जरूरी है कि हम अपनी नियतों की इस्लाह कर लें, और जो भी अमल करने के लिए हम जाएं सही नियत के साथ करें, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सही अजर दे। सवाल यह पैदा होता है कि नियत कहते किसे हैं? नियत ये दिल के इरादे को कहते हैं। आप नमाज के लिए जा रहे, अपने दिल के अंदर सोच ले मैं नमाज को जा रहा हूं, वजू करने जा रहे हैं, आप सोच लें कि मैं वजू करने जा रहा हूं फला नमाज के लिए। तो नियत किसे कहते हैं? इरादे को कहते हैं, कस्द को कहते हैं। किसी काम के करने का इरादा कर लेना, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा हासिल करने के लिए, अल्लाह का तकर्रुब हासिल करने के लिए किसी काम के करने के इरादे को क्या कहा जाता है? अरबी जुबान के अंदर नियत कहा जाता है। नियत की जगह क्या है? नियत की जगह आपका दिल है। बहुत से लोग कहते दिमाग है। हमारे बहुत सारे पढ़े लिखे नौजवान ये सोचते हैं कि सारा फैसला दिमाग करता है। दिमाग असल है। असल क्या है? दिमाग है या दिल है? हाँ, सोचता समझता कहां से आदमी? फैसला कौन करता है? दिमाग या दिल? हाँ, अंग्रेजी पढ़ने वालों का यही हाल है कि वो कहते हैं कि दिमाग फैसला करता, जबकि हकीकत है कि दिमाग मोहरा है किसका? दिल का। सरदार कौन है? दिल है। ये दिल फैसला करता है। दिमाग का क्या काम है? दिमाग का काम तसव्वुर में लाना। जब दिमाग पे कोई चीज आती है तो वो दिमाग उठा करके किसके हवाले कर देता? दिल के हवाले, कि ऐ दिल तेरा काम है अब फैसला करना, मेरा जो काम था मैंने तुझको चौकन्ना किया, वो चीज तेरे हवाले कर दी है और अब तेरा काम है फैसला करना। और इसी तरफ कुरान ने इशारा किया, लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, कि उनके पास दिल तो है लेकिन समझने वाले दिल नहीं है। कुरान करीम की आयत करीमा बता रही है कि सोचना, समझना और फैसला करना ये दिल का काम है, दिमाग का काम नहीं है। दिमाग तसव्वुर लेकर के आता है, ख्यालात लेकर के आता है, अब वो दिल के हवाले करता है। दिल फैसला करता है क्या करना क्या नहीं करना है। और इसी तरफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक हदीस के अंदर इशारा किया है। जी चाहता है प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस आपके सामने रखते चले। अन आमिर शाबी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु नुअमान इब्न बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु यक़ूल समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्नल हलाल बय्यिनुन व इन्नल हराम बय्यिनुन व बैनहुमा मुश्तबिहातुन ला यअलमुहुन्ना कसीरुम मिनन नास फमन इत्तक़ा शुबहाति इस्तबरअ लिदीनिहि व इर्दिहि व मन वक़अ फ़ी शुबहाति वक़अ फ़िल हराम कर्राई यरअ हौलल हिमा युशिकु अन यरता फ़ी अला व इन्ना लिकुल्लि मलकिन हिमा अला व इन्ना हिमल्लाहि महरिमु अला व इन्ना फ़ी जसदि मुज़ग़ा फ़इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लु व इज़ा फसदत
फसदल जसदु कुल्लु अला वहियल क़ल्बु अखरजो मुस्लिम। मुस्लिम शरीफ की लंबी रिवायत है। हजरत आमिर बयान फरमाते हैं, इस हदीस के नरेटर बयान करने वाले हजरत आमिर हैं। वो आमिर रिवायत करते हैं मशहूर सहाबी रसूल हजरत नौमान इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। हजरत नौमान कहते हैं, मैं जो हदीस आपके सामने बयान करने जा रहा हूं, इस हदीस को ऐसे ही जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सुनी है। और वो हदीस क्या है? जब हजरत नौमान हदीस बयान करने लगे, अपने दोनों हाथ को अपने कान की तरफ इशारा कहते हैं, इशारा करना था कि ऐ लोगों, जो हदीस आपको बयान करने जा रहा हूं, उस हदीस को मैंने इन्हीं दोनों कानों से सुना है। कहते हैं कि हलाल वाज़े है, हराम वाज़े है, कुछ चीजें डाउटफुल हैं, जिसके हराम होने की वजाहत नहीं, ना हलाल होने की वजाहत है, उसको मुश्तबहात कहा जाता है, डाउटफुल कहा जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने डाउटफुल वाली चीजों से बचा लिया, गोया उसने अपने दीन को महफूज कर लिया, अपने ईमान को महफूज कर लिया। और जो डाउटफुल चीजों की तरफ पड़ता है, वो अपना ईमान भी खराब कर लेता है और इसी तरह से अपना दीन भी खराब कर लेता है। जैसे कि अलिफ लाम मीम है, नून है, काफ हा या आइन स्वाद है, काफ है, इसका माना कोई जानता है? अल्लाहु आलम बिमुरादी। इसका माना ना तो अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया और ना ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बताया। इसकी तफसीर, तौजीह और इसका एक्सप्लेन किसी को नहीं पता है। ये मुश्तबह आयतों में से है। अब अगर इनके माने बताने की तरफ कोई पड़ेगा तो मुमकिन है वो अपने ईमान को खराब कर ले, और मुमकिन है कि जो चीज रसूल ने नहीं बताई है वो बता करके और इसी तरह से उस पर डटा रहे, मुनाजरे के लिए चैलेंज करे कि इसका यही माना है। तो ऐसा आदमी शरीयत के अंदर अपनी तरफ से ज्यादती करने वाला तशव्वुर किया जाएगा, और जो शरीयत के अंदर अपने तरफ से कोई चीज ऐड कर देता है वही बिदअत होती है। और इसी बिदअत के बारे में प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया था, कुल्लु बिदअतिन व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही इंसान को जहन्नम के अंदर लेकर के जाने वाली है। तो बात चल रही थी कि नियत का ताल्लुक। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बयान फरमाते, सुनो, जिस्म के अंदर एक गोश्त का टुकड़ा है, जब तक वो गोश्त का टुकड़ा सही रहेगा तब तक हमारे सारे बॉडी और जितने बॉडी हैं सबका संतुलन बरकरार रहेगा। जितने बॉडी पार्ट हैं, जितने हमारे बॉडी के अंदर फंक्शन हैं, जब तक ये दिल का फंक्शन चलेगा, सारे फंक्शन चलेंगे। और दिल का फंक्शन अगर बंद हो गया, दिल ने काम करना छोड़ दिया, तो हाथ सही सालिम होने के बावजूद उठता नहीं है, पैर सही सालिम होने के बावजूद वो चलने के लिए तैयार नहीं चल पाता है। दिल खराब हो गया। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि दिल खराब हो गया तो सारे बॉडी खराब हो जाएंगे। दिल अगर सही है तो आपकी सारी बॉडी सही है। ये किसी डॉक्टर ने नहीं बताया, बल्कि प्यारे रसूल ने पहले ही बता दिया कि बॉडी का जो सारा फंक्शन है ये दिल से चलता है। जब तक ये दिल सही है तब तक सब सही है। ये खराब हो जाए तो सब खराब हो जाएगा। रही बात दिमाग की, अगर दिल खराब हो जाता है तो दिमाग काम नहीं करता है, लेकिन दिमाग खराब हो जाए, दिल सही है तो उसके सारे फंक्शन काम करते हैं। इससे पता ये चलता है कि जो सोचने समझने की जो सलाहियत होती है, फैसला करने की ताकत और कुव्वत होती है, वो दिल के अंदर होती है। और नियत का ताल्लुक दिल है। नियत की जगह और पहले क्या है? दिल है। इसी दिल से सारे फैसले सादिर होते। मन में आया तो अच्छाई किया, मन में आया तो बुराई किया, मन में आया तो रो लिया, मन में आया तो हंस लिया। सारे फैसले ये दिल करते हैं। और इसी दिल को अल्लाह के रसूल ने सरदार कहा है सारे बॉडी के लिए। तो नियत का ताल्लुक किससे कहां पे है? नियत की जगह दिल है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि कोई काम करते हैं तो जुबान से नियत करते हैं, जबकि जुबान से नियत करना ना तो कुरान से साबित है, ना तो हदीस से साबित है, ना किसी सही हदीस से साबित है। यहां तक कि किसी ज़ईफ रिवायत से भी जुबान से नियत करना साबित नहीं है। और इस पर उलमा ने इजमा नकल किया है। सारे उलमा का मुत्तफका फैसला है कि नियत का ताल्लुक दिल से है, जुबान से नियत करना यह दुरुस्त नहीं है। इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि वक़द इत्तफ़क़ल उलमाउ अला अन्नल जहर बिन्निया व तक़रीरिहा लैसा बिमशरूइन
कहा तमाम फुक़हा का इस बात पर इत्तेफाक है, उलमा का तमाम इत्तेफाक है, तमाम उलमा का, कि बुलंद आवाज से नियत करना और बार बार उसको दोहराना ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। बहुत सारे लोग जब नमाज को जाते हैं तो जुबान से नियत कि मैं नमाज पढ़ता हूँ 4 रकात वास्ते जोहर के, पीछे इस इमाम के, अल्लाहु अकबर, इस तरह की जुबानों से नियत करते हैं। मैं सबको नहीं बुरा कहता, बहुत सारे नादान बेचारे नहीं जानते हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए कि जुबान से नियत करना ये अल्लाह के रसूल से साबित नहीं है। जब आदमी को आपने देखा होगा बहुत ज्यादा कसमें खाता है और जुबान से जब बहुत ज्यादा बोलता है, बहुत ज्यादा मोहब्बत का इजहार करता है, तो लोग कहते हैं इसके दिल के अंदर कोई कमी और नक्स है, इसके दिल के अंदर कालापन है, क्योंकि जो सही तरीके से मोहब्बत करता है वो बार बार जुबान से इजहार नहीं करता है, वो कसमें नहीं खाता है। ये हरकत वही आदमी करता है जिसके मन के अंदर कालापन रहता है, जिसका मन साफ नहीं रहता। और अल्लाह के रसूल से किसी भी रिवायत से साबित नहीं है कि कभी आपने जुबान से नियत किया हो, तो जुबान से नियत करना दुरुस्त नहीं है। तो नमाज के लिए वजू जरूरी है, वजू के लिए नियत का सही होना जरूरी है। अगर नियत सही नहीं है तो आपका वजू सही नहीं होगा। और अल्लाह के रसूल की हदीसें भी इसी तरफ इशारा करती हैं। और इमामों में से आप अगर देखें तो इमाम अहमद इब्न हंबल, इमाम शाफई रहमहुल्लाह, इमाम मालिक रहमहुल्लाह, ये तीनों इमाम कहते हैं कि जुबान से नियत करना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा इन्नमल आमालू बिन्नियात, अमल का दारोमदार कहां पे है? नियत पर है। अमल का दारोमदार कहां है? नियत पर। और नियत का ताल्लुक कहां से है? दिल से है। और इसी नियत की बुनियाद पे हमारा और आपका वजू सही होगा। यही तीनों इमाम का कौल है। इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम शाफई और इमाम मालिक रहमहुल्लाह, ये तीनों कहते हैं कि जब तक नियत आप वजू के लिए नहीं करेंगे, जब तक आपका वजू दुरुस्त नहीं होगा। और नियत की जगह सारी चीजें मैंने आपके सामने रखी। अब उसके बाद वजू की फजीलत पर एक हदीस बयान करके मैं अपनी बात को खत्म करता हूं, क्योंकि प्रोग्राम में भी जाना है, हज हाउस में जो है आज फंक्शन है, तो वहां भी कोशिश है जाने की। तो वजू की फजीलत, बहुत सारे लोग कहते हैं कि वजू का क्या फायदा, इसकी फजीलत को नहीं जानते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू हुरैरा की रिवायत है, फरमाते हैं कि इज़ा तवद्दा अल अब्दुल मुस्लिमु, कि जब एक मुसलमान आदमी वजू करता है, फगसला वजहहू, और अपने चेहरे को धुलता है, खरजा मिन वज्हिही कुल्लु खतियतिन नदरा इलैहि बिअैनैहि मअल मा, तो उसने आंख के जरिया से जो भी बुराई की है, मुंह धुलने के बाद उसकी सारी बुराई जो उसने आंख से की है, किसी की तरफ देखा है, हराम की तरफ देखा है, आंख से जितनी भी उसने बुराइयां की है, पानी के आखिरी कतरे के साथ उसकी बुराई क्या है? झड़ जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने अपने हाथ को धुला, खरजा कुल्लु खतियतिन, उसके सारे गुनाह जो होते हैं वो गुनाह पानी के आखिरी कतरे के साथ साफ हो जाते हैं। इसी तरह से अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसने पांव को धुल लिया तो पांव से किए जाने वाले बुराई, यानी किसी बुराई की तरफ गया हो या किसी चोरी की नियत से गया हो या और बुराई करने की नियत से गया हो, चल करके गया हो, वजू करने की वजह से उसका गुनाह क्या हो जाता है? साफ हो जाता है। प्यारे रसूल फरमाते हैं यहां तक कि वो गुनाहों से बिल्कुल पाक व साफ हो जाता है जब वो मुकम्मल वजू से पाक हो जाता है। तो वजू करने से आदमी का गुनाह झड़ता है। आप, ये जरूरी नहीं कि आप नमाज के लिए ही वजू करें, कोशिश यह करें कि हमेशा हम बावजू रहें। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वजू की हालत में जिसकी वफात हो जाती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जन्नत की खुशखबरी दी है। सहाबे किराम और सलफ के बारे में आता है वो हमेशा बावजू रहते थे, वजू टूट जाता तो जा करके वजू कर लेते थे, क्योंकि फायदा इतना ज्यादा है। हाथ धुला, हाथ के गुनाह खत्म, चेहरा धुला, चेहरे के गुनाह खत्म, आंख के गुनाह और इसी तरह से पैर के गुनाह खत्म हो जाते हैं। कान पे अगर उसने मसा कर लिया, कान के गुनाह झड़ जाते हैं। ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। और ये इसी वजू के जरिया से कल कयामत के दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को पहचाना जाएगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इन्ना उम्मती यातूना यौमल क़ियामा गुर्रन मुहज्जलीन मिन आसारिल वुदू। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मेरी उम्मत कल कयामत के दिन आएगी, उसके हाथ पांव वजू की वजह से
चमक रहे होंगे, चेहरा धुला होगा, चेहरा चमक रहा होगा, पांव धुला होगा, पांव चमक रहा होगा, हाथ धुला होगा, हाथ चमक रहे होंगे, दूर से पहचान लिए जाएंगे ये कोई और नहीं, ये उम्मत मुहम्मदिया है, ये प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाली उम्मत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अला अदुल्लुकुम अला मा यमहु बिल खताया, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज ना बतला दूं जिसके जरिया से अल्लाह रब्बुल आलमीन गुनाहों को झाड़ देता है, दरजात को बुलंद कर देता है जन्नत के अंदर। अल्लाह के रसूल से कहा गया जरूर बताइए क्या चीज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसबागुल वुदू अलल मकारे, नापसंदीदगी के बावजूद भी आदमी का वजू करना। क्या मतलब? ठंडी लगी है उसे, ठंड का मौसम है, पानी बिल्कुल ठंडा, हिम्मत नहीं हो रही है, फिर भी वो वजू कर लेता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस वजू के करने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाह को झाड़ देता है और जन्नत के अंदर उसके दरजात को क्या कर देता है? बुलंद कर देता है। अल्लाह के रसूल एक जगह फरमाते हैं लन युहाफिज अलै, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वजू पर मुहाफिजत और हिफाजत वही आदमी करेगा जिसके दिल के अंदर ईमान होगा। ये ईमान वालों की निशानी है जो हमेशा बावजू रहना पसंद करते हैं। यही सहाबा का तरीका, यही सलफ का तरीका रहा है और यही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें भी हमें बतलाती हैं कि हम बावजू रहें। और बावजू रहने का फायदा यह है कि फ्री में अल्लाह गुनाह को झाड़ देता है। क्या चाहिए और इंसान को इससे बड़ा हदिया, इससे बड़ा तोहफा कि आप हाथ पांव धुलते हैं, हैंड वॉश, फेस वॉश, लेग वॉश, आप सफाई के लिए वजू की नियत करके धुलते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको कितना सवाब देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दीनी मसाइल समझने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दीन की सच्ची फहम अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जितने हाज़रीन यहाँ पे हैं सारे लोगों की हाजिरी को कबूल फरमा ले। अल्लाह जो भी यहाँ पे आए हुए हैं उनकी हाजिरी को कबूल फरमा कर उनकी मगफिरत का जरिया इस मजलिस को बना दे। अल्लाह इस मजलिस के रचाने वाले, इस मजलिस के सजाने वाले की मगफिरत फरमा। अल्लाह तमाम मोमिन माओ और मोमिन बहनों को ईमान की हिफाजत की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह हम तमाम लोगों को जालिमों के जुल्म से, हासिदों की हसद से महफूज अदा फरमाए। अल्लाह उम्मत मुसलमा की हिफाजत फरमा। अल्लाह मोमिन मर्द मोमिन औरतों की हिफाजत फरमा। अल्लाह जो कर्जदार है उन्हें कर्ज की अदायगी के सबील अता फरमा दे। अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें बीमारी से शिफा दे दे। अल्लाह जो कब्रों में मदफून है उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर व मुजल्ला फरमा दे। अल्लाह उनके सय्यात को, उनकी सियाहकारियों को नेकियों में तब्दील कर दे। अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा। अल्लाह उनकी मगफिरत फरमा। अल्लाह हमें और तमाम हाज़रीन को अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक इनायत फरमा, उनकी अतात व फरमा बरदारी की तौफीक इनायत फरमा। अल्लाह हमें रिश्ते जोड़ने की तौफीक इनायत फरमा। अल्लाह मुझे हमें गीबत से महफूज कर दे। अल्लाह हमें चुगलखोरी से महफूज कर दे। अल्लाह हमें लानो तान से महफूज कर दे। अल्लाह हमें जालिमों की जुल्म से बचा ले। अल्लाह हमारी इज्जत व नामूस की हिफाजत फरमा ले। अल्लाह जो बे औलाद है उन्हें औलाद की तौफीक इनायत फरमा। अल्लाह जो बे औलाद है उन्हें औलाद से नवाज दे। अल्लाह जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद से नवाज दे। अल्लाह जिनके पास औलाद, जिनको अल्लाह ने नवाजा है, अल्लाह उनकी औलाद को उनकी मगफिरत और बख्शिश का जरिया बना दे। अल्लाह जब तक तू हमें दुनिया के अंदर जिंदा रख, ईमान पर जिंदा रख, तौहीद पर जिंदा रख, और जब खात्मा हो ईमान पर हो, तौहीद पर हो और हमारे दिल अपने मुसलमान भाई के लिए पाको साफ हो। वाक़ूलु क़ौली व अस्तग़फिरु ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।